Hello, good afternoon everyone. In today's session, we will be focusing on the recovery. During the recovery phase of COVID-19, we will be focusing on the recovery on the physical aspects as well as the mental emotional aspect. Human body, which is existing, two things are basically related to human body. One is the psychological well-being and the physical well-being. In COVID situation, as we all know, the cardiopulmonary system is being affected, and due to that, since the individual is being affected for certain number of days, his entire psychology is also affected. Now we need to take care of these two things on separate levels. One is the physical well-being and the emotional well-being part. अगर हम इसको समझें तो इसमें दो डायरेक्शंस हैं. एक में इनवर्ड का है, फ्रॉम सेंटर पार्ट टू द आउटर पार्ट, एंड एक में रिवर्स है, फ्रॉम द आउटर टू इनवर्ड. इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट, आफ्टर कोविड, व्हेन द इंडिविजुअल इज बैक टू द होम, he is completely weak and emotionally he is a bit tortured due to the previous experiences which he has had during his affected days, during the admission, isolation, ICU. यहाँ पे हमें देखना है कि जब वो वापस आ गया है, he has to work on two parts, and the physiotherapy part plays a very crucial role to getting back to the original state of fitness which he had earlier before the COVID situation. Exercises also are completely structured. It's not like he can do everything. He has to focus and maintain the exercise protocol, conserving the energy, his inner energy. ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल vigorous exercise start कर देनी during the recovery phase. Eccentric form of exercises he has to focus. Eccentric form of exercises, he has to do the muscle contractions, conserving the energy, which over a period of span he will develop the main strength, his core strength. Regarding the strength part, he has to focus at various segments of his body. He has to look, the concerned individual has to look after his neck strength, his arm strength, trunk strength, lower extremities. इन सब का करने के बाद he has to focus on his respiratory functions, his for which he has to perform certain breathing exercises. Regarding breathing exercises, we need to focus during the COVID phase. We have been seeing certain videos in which the individual are vigorously being performed with the cupping and clapping, all those. It is recommended in certain studies that they are not meant for everyone. This I would like to mention again. Cupping and the clapping and all is not advised for everyone. 80% doesn't require it. For those 20%, it is required. Only they help for the secretions. Patients who are having secretions, only for them clapping, cupping, percussions are helpful, otherwise not. For the other 80%, we need to take care of the passive movements, strengthening movements, mobilizations, etc. Regarding exercise, we can make a structured chart for the day he can perform in the thrice a day, and that he has to self-analyze and self-scan the joints so that it's easy for him to remember that he has to involve all the joints from up to down or down to upward, neck, shoulders, arms, then the trunk, hip, thigh, knees and ankle. This way, easy to remember, and some basic movements which can be performed by him at all levels. After these movements, the second part starts where he can perform on certain breathing exercises. In yoga, he can perform the pranayams, Anulom, Vilom, deep breathing, Sheetli. After this second exercises of respiratory, these breathing exercises, he can come up with certain meditation exercises also, which will help him to calm down mentally.
this has a very crucial role. During this entire scenario, he is having lots of memories which are troubling him. Every individual has the different reactions to the memories which he is going through from the past month or days or weeks. To settle down all these undesirable thoughts which are not required for him, which are in spite bothering him very much, and which is a very bigger hindrance in recovery. Along with the exercises which he is doing, breathing exercise, passive movements or strengthening part, he has to take care of his sound state of mind, for which meditation, as I mentioned previously, and this meditation is nothing but calming himself from all the memories or thoughts which are bothering him. This calming process of mind will further enhance the recovery process. Then many people question that how can one control the thought, how can just avoid these kind of thoughts, negative thinking. ध्यान ये रखना अब इस बात में, थॉट्स इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, बट एट पैरेलल ही हैज़ टू थिंक व्हाट ही वांट. ही इज एक मेजर समस्या आ रही है कि भाई अब हम बच गए हैं, तो इज इट नेसेसरी वी हैव टू बी थिंकिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स which were unhappy things which happened. We should be thankful we are alive. Now we are in this phase. Now we have to deal with a calm situation कि हाँ हम ठीक हैं, अब सेटल्ड हैं, सब कुछ बढ़िया है, जो खतरनाक दौर था वो निकल चुका. अब इस साइलेंस जोन को वी हैव टू फील एंड एब्जॉर्ब इट. स्ट्रेस मैनेजमेंट की जहाँ तक इसमें बात चलती है, जो कि बहुत मेजर रोल है साइकोसोमैटिक में इस वक्त, इस सिनेरियो पोस्ट रिकवरी फेज़ में, पोस्ट कोविड की रिकवरी फेज़ में. The individual who is on bed during the recovery phase, क्या वो अपने साथ समय बिता रहा है, during mindful breathing कर रहा है? He is further indulged into all various kind of thoughts. क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फलां हो गया, ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा चल रहा है. उन सब में ना उलझ के अगर वो अपने आप को इस आइसोलेशन को, जो पोस्ट रिकवरी उसमें है, कोविड रिकवरी फेज़ में, अपने आप को सेटल्ड वे में, अपने आप को साउंड स्टेट में ईजी रखता है बिल्कुल, एंड ही इज़ जस्ट विजिलेंट अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इट विल फर्दर एनहांस हिज रिकवरी. मेडिटेशन में जो उसकी एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी फंक्शंस का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं एंड मेडिटेशन, ये जितना माइंडफुल उसका होगा उतना ही वो ईजी रहेगा, एंड ही विल बी कमिंग आउट विथ वेरी वेरी एनर्जेटिक फॉर्म. एक्सरसाइजेस जो मैंने बता दिए हैं, अप टू डाउन, head to toe we can function, breathing exercises, meditation. Apart from this, certain, जैसे कि अब हमारे पास समय ज़्यादा है, हम रुक रहे हैं, ठहरे हुए हैं, तो we can come up with certain all the activities which were submerged due to our engagement with the routine busy life. हम अपने हॉबीज़ को लेके आ सकते हैं. आर्ट हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, कुकिंग हैं, इंटरेक्शन विद द फैमिली. घर में बहुत लोग हैं, इस दौरान हम उनसे बहुत हेल्दी वे में इंटरेक्शंस कर सकते हैं. दिस फर्दर हेल्प्स इन द क्लोजनेस एंड बॉन्डिंग, वेरी क्रूशियल एंड हैप्पी बॉन्डिंग अमंग द फैमिली मेम्बर्स. जो एक यूनिट है, एक डायनामिक यूनिट एग्जिस्ट करती है, उसके डायनामिज्म को हम एंजॉय कर सकते हैं आपस में. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नॉट क्वेश्चंस. एक्सरसाइज फॉर्म में हम लोग जब बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो वॉकिंग कैन बी इंक्लूडेड इन इट अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक जॉइंट वाइज एक्सरसाइजेस. वी कैन स्ट्रेक्ट्रिक एक्सरसाइजेस में वी कैन फोकस ऑन द quadricep strengthening part, majorly on bed. We can show up the we can निकाल, आप आ जाइए. We will be demonstrating certain movements. आप इधर आ जाइए, सीधे हेड टू टो नेक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. These movements from the head to toe, they will hardly take around 7 minutes, 7 to 8 minutes, 4 to 5 repetitions. ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइजेस
बहुत एग्जर्टिव नहीं होनी है, सिंपल एक्सरसाइजेज रखनी है हमको, थकाना नहीं है, एनर्जी को बचा के रखना है और सारे जॉइंट्स को हमारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। ये मेन कंसर्न है हमारा कि हमें बहुत थकना नहीं है इन चीज़ों में। जो जॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, उनकी मोबिलिटी को हमें मेंटेन रखना है, उनकी जो टोन है वो मेंटेन रखनी है, ब्रीदिंग हमें इन्हांस करनी है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पे हमें फोकस करना है और साउंड स्टेट पे फोकस करना है कि हमें घबराना नहीं है इन चीज़ों से। कुछ मूवमेंट्स हम नोटिस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, नेक से स्टार्ट करेंगे, सिटिंग पोजीशंस में इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल, नेक के बाद आर्म स्ट्रेच करना है पूरा, रिलीज, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सेकेंड एल्बो की मूवमेंट्स, ये सब बैठ के हो सकती हैं आराम से। रिस्ट पे आ गए हैं, आफ्टर शोल्डर्स हम स्पाइन पे आ जाएंगे। ट्रायंगल पोज है, इजी, इनहेल एक्सहेल के साथ आराम से स्ट्रेच, वापस स्पाइन पे फोकस करते हुए, विद साइडवर्ड्स की बेंडिंग मूवमेंट्स होगी, अप फॉरवर्ड एंड बैक स्ट्रेच, इनहेल आराम से स्लो, अगेन। ये हर किसी के लिए अलग है, जितनी रेंज अलाउ हो करे बॉडी। रिलैक्स। इसके बाद हम हिप जॉइंट पे फोकस करेंगे, साइड स्विंग, कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है, हर एज ग्रुप का आदमी कर सकता है। ये सामने का फ्लेक्शन है, हिप फ्लेक्शंस, सिंपल टू डू। गुड। अबडक्शन, एडक्शन लेग्स का, गुड। पीछे की तरफ एक्सटेंशन, गुड। इनहेल एक्सहेल के साथ ट्यून करके, गुड। अब ध्यान से देखेंगे नीचे, फुट का इनवर्ड एंड एक्सटर्नल रोटेशन, आराम से हील पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गुड। फिर हील रेजिंग, रिलैक्स, हाफ स्क्वाट्स जितना कन्वीनियंट हो, सपोर्ट लेके, क्वाड्रिसेप्स के लिए इसमें बहुत नीचे नहीं जाना है, कन्वीनियंट रेंज में रखना है। रिलैक्स, बेड पे आ जाइए। स्ट्रेट लेग रेज करना है, पैरों को लिफ्ट करना है, क्या करके, गहरी सांस लेके, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है। मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए है, मूवमेंट्स हमें मेंटेन रखनी है। सेकंड है ऊपर की तरफ कन्वीनियंट रेंज में भुजंगासन, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल पे ध्यान रखना है, ट्यून अप करना है। रिलैक्स, नी फोल्ड करना है पूरा,
एडी फोल्ड कर देना है पूरा, आराम से छोड़ देना है, फिर से रिलैक्स। थाई मसल पे फोकस करना है पीछे की तरफ, कैसे वो पुल कर रही है। गुड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एब्डोमेन पे फोकस करना है, कैसे सांस जा रही है। घुटने पे आ जाइए, पीछे बैठ जाइए पूरे स्ट्रेच के साथ, वापस जाइए नीचे इजी वे में आराम से। एक बार और गहरी सांस लेके रिलैक्स्ड। कर पाएँ तो इजी है, अगर इजी है तो करें, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं। रिलैक्स, सीधे हो जाइए करवट लेके। एक एक करके पैर को उठाना है। इस एक्सरसाइज में ध्यान ये रखना है कि आपको 3 जगह काम करना है। पंजे को पुल करके रखना है, घुटना स्ट्रेट, और हिप मसल इसको उठाएगी पूरे लेग को। 3 जगह 3 मांसपेशियाँ आपकी कोऑर्डिनेशन में रहेंगी। रिलैक्स, फर्स्ट अगेन, रिलैक्स, रिलैक्स। नी फोल्ड करना है ब्रीजिंग के लिए। गहरी सांस लेके कमर उठाना है, छोड़ना है, अगेन। देखने में जितनी आसान लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको सहूलियत लगे जिस एक्सरसाइज को, उसको आपने 20, 30, 50 रिपीटेशन कर दिए। इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट फोकस करना है कि आपको एनर्जी बचानी है, हमें सिर्फ मसल की टोन मेंटेन रखनी है, रिपीटेशन हमें मिनिमल रखने हैं, 5 या 10 इज सफिशेंट। रिलैक्स, रोलिंग कर देंगे घुटनों की, आराम आराम से। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, पैर सीधे, एल्बो खड़ी करके गहरी सांस लेके फिश पोज पे। रिलैक्स, एक्सहेल, इनहेल, आराम से स्ट्रेच फील करना है, पूरी सांस लेनी है, रिलैक्स, छोड़ देंगे। गहरी सांस, फिर से चेस्ट अप, रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, तो हम लास्ट में समराइज करते हैं। पहली चीज़ हमने कहा, डायरेक्शन स्पेसिफिक रखें ताकि आपको करने में आसानी रहे, आप इजी वे में सारे मूवमेंट्स को कर पाएँ। हमने हेड टू टो की मूवमेंट करी, हमने लगभग सारे जॉइंट्स उसमें कवर किए। अगर मैं वापस रिकॉल हूँ, नेक, शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट। स्पाइन की हमने साइड बेंडिंग्स करी थी, फॉरवर्ड बेंडिंग और एक्सटेंशन किया था। हिप पे आ गए तो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन किया। नी पे हाफ स्क्वाट करके हमने नी स्ट्रेंथ पे काम किया। एंकल रेजिंग करी हमने, हील रेज जिसमें किया था। उसके बाद हमने बेड पे आ गए, SLR किया हमने, पैर लिफ्ट किया था, पेट के बल लेट के सीना उठाया था, फिर हम करवट के बल सीधे हो गए थे। अगेन उसमें हमने SLR किया, पैर को, तीनों जॉइंट्स को लॉक किया था, एंकल, नी और हिप। उसके बाद हमने घुटने फोल्ड करके हिप रोलिंग किया। उसके बाद हमने ब्रिजिंग किया, फिर हमने फिश पोज किया। इसमें हमने लगभग मोर और लेस सारे जॉइंट्स हमने कवर किए। सेकेंड पार्ट फिर हम आ जाते हैं प्राणायाम्स में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, जो भी हम उसमें हमें मेन इन्वॉल्व करना है, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है हमने, इसमें पेट को इन्वॉल्व करना है। तीसरा कंपोनेंट है मेजर रोल, जो इस सिचुएशन में रिकवरी फेज में हेल्प करता है। हमारे पास जो बम्बार्डमेंट हो रहा है थॉट्स का, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, थोड़ा कैसे हम जो अनवांटेड थॉट्स हैं उसको कैसे रोकें, जो बहुत ज़रूरी नहीं है इस वक्त, उसके लिए आपका मेडिटेशन हेल्प करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।